लोगों ने हमारे पाँव के छाले नहीं देखे जो 2014 से लेके 2020 तक की अलग सर की स्टोरी है, जो मेरी स्टोरी है। तो इट वाज द इयर्स ऑफ हार्ड वर्क व्हिच गॉट मोनेटाइज्ड इन 2020। आई वांट टू बिल्ड अ बिजनेस जो वीसी फंडेड ना हो, जो प्राइवेट इक्विटी फंडेड ना हो। मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कस्टमर फंडेड होगा, जो स्टूडेंट फंडेड होगा। करंटली प्रॉब्लम यह है कि हम एआई को यूज कर रहे हैं फॉर कॉस्ट सेविंग। अगर आप एआई को कॉस्ट सेविंग की तरह यूज कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी डेड। दैट इज़ नॉट द यूज केस ऑफ एआई कि हमने हमारी टेक टीम की कॉस्ट कम कर दीजिए या हमने थोड़ा सपोर्ट, टिकटिंग, ऑटोमेशन। यू हैव टू थिंक एआई फर्स्ट। स्टार्टअप एक जर्नी है। इट इज़ नॉट अ इवेंट इन योर लाइफ। इस जर्नी को जिए and create value for yourself, your family, your customers. The famous co-founder of PW Physics Wala, which actually has taken the education sector to the next level and a phenomenal IPO. So Prateek, what should I ask you? I just dropped to say hi to you, but like anything. You know, but one very important question I have, because I'm seeing thousands and thousands of people, everyone is trying to build something, do something, grow. What do you think as entrepreneurs, as people, we should keep at the center of everything that we do? So we at Physics Wala, we keep student at center of everything what we do. Because that is something very close to our heart and that is why we exist. So keep customers at center of everything. That is really helpful. And especially seeing so many budding entrepreneurs here. One small advice would be that try to get into a revenue stage, because a lot of 0 to 1 ideas I met today. But it's very important you make revenue, you make profits, you have active paying customer of your idea. That is one advice I would like to share. Yeah, I wish this advice is like, printed and we remember, because as entrepreneurs, we just forget this. A question to you, and again, this will be very relevant to everyone. Physics Wala came in a space which was already dominated by a lot of players, and new age players also funded, and you were able to not only carve a niche, today you are leading the market. You've shown by the outcome that you have generated in the market. तो अब डिबेट है ही नहीं, तो आप बताइए वो कैसे होता है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अभी हम बात ही कर रहे थे, राकेश, वन ऑफ आवर इंजीनियरिंग डायरेक्टर, मैं उसको बोल रहा था यार कुछ करो, तुम भी एआई में इतने लड़के कुछ कर रहे हैं। तो ही वाज टेलिंग कि यार मैं जो भी आइडिया लेके आता हूँ मुझे लगता है ये हो चुका है या हो रहा है। तो इफ़ आई लुक एट माई जर्नी 2017-18 में इट वॉज डिसाइडेड कि नंबर 1, 2, 3, 4 प्लेयर्स एडटेक में कौन कौन है, और देर वॉज नो रूम फॉर एनी न्यू प्लेयर। बट वी केम आउट ऑफ सिलेबस एंड वी स्पॉटेड अ यूनिक मार्केट। 80% इंडिया जो एग्ज़ाम के फॉर्म भर रहा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिनके पास में गुड क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं है। वी जस्ट स्टिक टू वन मार्केट, वेंट डीप 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 इनटू दैट and created our own niche. And now we are everywhere. Like, if you see, we are in K-12, we are in test prep, we are number 1 player in UPSC as well now. Yeah. So, like sometimes ignorance is bliss. आप अपना काम करते चले जाओ, देखते चले जाओ, आप अपने यूज़र के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते चले जाओ, and things will fall in place is what I have learned from my journey. तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ तो कर ही रहे हैं, but focus on your customer or your users and just create value for them and things will fall in place is what I have learned. आपके बारे में एक बहुत खास बात ये है कि लोग सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं मगर पीछे अच्छा नहीं बोलते हैं, मगर आपके बारे में पीछे भी अच्छा बोलते हैं। और बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो आपके साथ काम करते हैं, कर चुके हैं, दे ऑल स्पीक वेरी हाईली ऑफ यू। एंड वन थिंग दैट कम्स रेगुलरली कि प्रतीक ना वो स्ट्रैटेजी ही नोज कि टेक को कैसे स्केल करना है, मोनेटाइज कैसे करना है, बट you've not been a person who's been in the limelight that much, right? Was it one conscious decision? And second, ये DNA जो था कि टेक को स्केल करके मोनेटाइजेशन पे आंख रखना हमेशा वो शुरू से था या इवॉल्व होके आया? So कैमरा के सामने I come not very frequently, that I have reserved for my
ओल्ड एज, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बहुत आपके साथ इंटरव्यूज अभी आप बहुत जवान हैं। बट वी आर सो मच एंड वी आर वेरी हैंड्स ऑन फाउंडर्स, तो हम बहुत सारी चीज़ें अभी भी खुद से कर रहे हैं, रिव्यू मीटिंग से लेकर के हाँ। 0 to 1, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी होता है, बट इन पर्सन मीटिंग्स के लिए एज आई एम ऑलवेज अवेलेबल। यस। और मोनेटाइजेशन करना वॉज ऑलवेज अ कॉन्शियस चॉइस। वी टुक दिस एज अ सोल प्रिंसिपल कि यार आई वॉन्ट टू बिल्ड अ बिजनेस जो VC फंडेड ना हो, जो प्राइवेट इक्विटी फंडेड ना हो। मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कस्टमर फंडेड होगा, जो स्टूडेंट फंडेड होगा। और हमारी जर्नी के अंदर भी आप देखेंगे तो जो 2 फंड राउंड हमने रेस किए उसकी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। फर्स्ट फंड राउंड वॉज एक्चुअली हेल्पफुल, जब आप फ्लोर पे आए और आपने अलग का इंटरव्यू किया, दैट वेंट क्वाइट वायरल, तो वो टैलेंट अट्रैक्शन के लिए वॉज यूजफुल, बट एक्चुअली वी नेवर यूज दैट कैपिटल। तो जो अच्छे बिजनेस होते हैं वो आप कस्टमर लव से बनते हैं, वो कस्टमर फंडिंग से बनते हैं। हाँ। तो हमने तो ये प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे काफ़ी, और अच्छा एजुकेशन बिजनेस वो होता है जो गुड वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस होता है। जो अगर आप अच्छा पढ़ाओगे तो बच्चे बाकी बच्चों को बताएंगे और आपके पास में स्टूडेंट्स आते चले जाएंगे। बट नॉट लाइक नो, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट वन शू फिट्स ऑल। लाइक नो, ऐसा नहीं है कि मेरी लर्निंग आपके यहाँ पे एग्जैक्टली लग जाएगी। कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, कस्टमर लव और कस्टमर ऑब्सेशन, तो देखो आप लोगों को रखना ही पड़ेगा। बाकी रेस्ट थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। लाइक यू हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम 17 years, अमेजिंग जर्नी। आप योर स्टोरी की जर्नी को देखेंगे तो दैट इज मोर इंस्पिरेशनल देन दिस वाला जर्नी। No, I'm not, no IPO. I'm a baby corn. You guys are unicorn. Now coming to a question जो कि मुझे लगता है हम लोग कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जाएंगे इस इवेंट से, बहुत लोग पूरे इंडिया से लोग आए हैं। आई एम टॉकिंग प्राइमरली अबाउट द इंडियन स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, डेवलपर्स हुआ हियर। हमें लगता है कि हमें सक्सेस चाहिए, मगर सक्सेस ओवरनाइट होता नहीं है। आई वॉन्ट यू टू ओपनली टेल अस अबाउट योर जर्नी, क्योंकि हमें तो लगता है फिजिक्स वाला आया और इतना सक्सेसफुल हो गया, बट यू ऑल्सो हैड अ बैक स्टोरी बिफोर दैट। So if you can share that with us. I'll quickly share. I'll Yes, not quickly bore share. you. So it's a Chinese bamboo story. लोगों को लगता है कि यार अचानक से कोविड आया और फिजिक्स वाला इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन गया, फंडिंग हो गई, वन थिंग लेड टू अनदर, और लाइक IPO हो गया। बट एक्चुअली लोगों ने हमारे पाँव के छाले नहीं देखे, जो 2014 से लेके 2020 तक की अलग सर की स्टोरी है, जो मेरी स्टोरी है। तो इट वॉज द ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क विच गॉट मोनेटाइज इन 2020। तो वो चाइनीज बैम्बू वॉज इनसाइड द अर्थ फॉर दैट 5-6 years। अलग सर यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे थे, इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बना 2020 तक। ही यूज टू लॉक हिमसेल्फ फॉर 8-12 hours इन अ रूम। ही यूज टू प्रिपेयर फॉर 2 hours ऑफ लेक्चर। ही यूज टू प्रिपेयर फॉर 12 hours a day। तब वो फिनिश, तब वो क्वालिटी, तब वो स्टूडेंट लव वो गैदर कर पाए। एंड आई वॉज बिल्डिंग अ SaaS company with the name of Pen Pencil. We used to cater to educators, YouTubers, coaching institutes. तो बहुत सारे rejections देखे पूरी जर्नी के अंदर, क्योंकि SaaS business, B2B business इंडिया में build करना is like very tough. Yeah. और back in those days तब किसी का टेक्नोलॉजी पे, इंटरनेट पे, ऑनलाइन एजुकेशन पे भरोसा ही नहीं था। तो वो सारी लर्निंग वॉज वेरी यूजफुल वंस द राइट अपॉर्चुनिटी केम इन कोविड। तो मतलब वी आर कंपनी विच इज़ बॉर्न आउट ऑफ कोविड। तो वो पूरी लर्निंग, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन्होंने 2020 के अंदर एडटेक स्टार्ट किया, तो वो लर्निंग कर्व उनके पास में नहीं था। बट वी वर डूइंग दीज थिंग्स फ्रॉम पास्ट 4-5 years। नो, बट थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट द पैर का छाला, क्योंकि हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं तो फिर लगता है अरे बाप रे, ये लोग इतने बड़े, इतने जल्दी हो गए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज टेक अस थ्रू वेरी क्विकली। वो जब छाले लग रहे थे, पढ़ रहे थे, जब आप पेन पेंसिल चला रहे थे, हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम? सो वन बेसिक जो क्वालिटी का एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, ही शुड बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, विच श्रद्धा इज द बेस्ट स्टोरी टेलर इन द कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको अपनी टीम्स को स्टोरी सेल करनी पड़ती है, अपने कस्टमर्स को स्टोरी सेल करनी पड़ती है, अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को। तो मोटिवेशन तो आपको अपने कस्टमर से मिल ही जाता है, और छोटी छोटी विंस को आप सेलिब्रेट करते चले जाओ। छोटे छोटे कस्टमर्स आ रहे हैं, एक्टिव यूजर्स आ रहे हैं, पेइंग कस्टमर्स आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा क्लाइंट मिल रहा है। तो जो छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते चले जाओ। और अगर आप अच्छी टीम अपने साथ में जोड़ते हो तो वो आपके विजन से जुड़ते हैं।
कई बार आप उनको सैलरी नहीं भी दे पाते हो कुछ महीने, तो दोस टैलेंट स्टिल स्टिक विद यू। Yeah. तो वो सारे फेजेस आए, 2-3 महीने तक हम सैलरी नहीं दे पा रहे थे, बट टीम को लगा नहीं नहीं वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, चलो इस महीने ने लेट मिली है, अगले महीने मिल जाएगी। तो वन थिंग लेड टू अनदर, और लॉयल्टी टुवर्ड्स योर कस्टमर वी kept intact, or by 2020 we were ready with the India's best technology to cater millions students, and that's how we created world's mega classrooms जहाँ पर लाखों बच्चे एक साथ simultaneously live class में पढ़ रहे हैं। और Yeah, physics wala is a phenomenal story, phenomenal brand. But a thing which I am going to pick, and I hope all of us pick, is what you are saying is that हर साल में 365 डे होते हैं, दिन होता है, घंटे होते हैं. सो इन योर एंड गोल में आप छोटी छोटी चीज़ें रोज़ मत भूल जाइए, चाहे वो छोटा विन हो, छोटा कुछ भी, छोटा छोटा माइलस्टोन हो. Enjoy the process is what you are saying, and you did that, and that is when you reach somewhere and then you reach the jackpot. AI, now we are in AI Impact Summit. One, I would love to hear from you about the summit, and the second is, what would you say? You're a tech person also. What would you say ये AI का क्या impact है और इंडिया में क्या opportunity है? तो इंडिया में तो बहुत लार्ज अपॉर्चुनिटी है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंजप्शन स्टोरी इंडिया की बहुत अच्छी चल रही है. AI is not just a technology, like it is bigger than internet. You pick a sector and put a AI in front of that sector and that reimagine the entire sector. Today I just came here to learn, like there was no talk, accidentally I landed here, but इतने सारे स्टार्टअप्स इतना कुछ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो गाँव के अंदर आज भी अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, अभी भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो देयर आर ह्यूज एरिया जहाँ पर हार्डवेयर और इंटरनेट भी नहीं है. हाँ. उनकी लाइफ के अंदर भी वैल्यू एडिशन AI कर सकता है. देयर आर सो मेनी SLMs कमिंग आउट ऑफ इंडिया. वी क्रिएटेड आर्यभट्टा विच इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो कि कंसेप्चुअल जो कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए बेटर देन top large language model है. Not just better, it's 1/10 of cost and 5 times of the speed of the. So you have created that. Yeah, and it is open source आर्यभट्टा मॉडल जो कि अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं. आर्यभट्टा मॉडल. हाँ, आर्यभट्टा इस क्योंकि वो मैथ्स से स्टार्ट किया था, अभी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सबके अंदर है. इंडियन टेस्ट प्रेप की प्रॉब्लम वो बेटर देन एग्जिस्टिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल से सॉल्व कर रहा है विद बेटर एक्यूरेसी, 1/10 of the cost and 5 times of the speed. We are coming with the 2 more small language model, but we are just barely scratching the surface. One advice for all the entrepreneurs, if you are starting a fresh idea, think कि उस idea के अंदर आप AI first कैसे सोच पाओगे. अभी currently problem यह है कि हम AI को use कर रहे हैं for cost saving. अगर आप AI को cost saving की तरह use कर रहे हो तो you are already dead. You are already dead. That is not the use case of AI कि हमने हमारी टेक टीम की कॉस्ट कम कर दीजिए या हमने थोड़ा सपोर्ट टिकटिंग ऑटोमेशन. यू हैव टू थिंक AI फर्स्ट कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर AI से मैं करूँगा तो वो क्या वर्क फ्लो होगा, वो क्या ऑर्ग होगा, वो क्या सोल्यूशन होगा. दिस इज़ वॉट समथिंग इज नीड ऑफ द आवर फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज, फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स कि पूरा नेटिव AI सोच करके. And that's why Gen Zs and Gen Alpha has this advantage because they don't have like the legacy or the baggage. Yeah, baggage. So that is why I came here to understand from these Gen Zs and Gen Alpha entrepreneurs. You know, but Prateek, this is what stands apart about you. वो लर्नर्स माइंडसेट आपसे मिलकर मुझे वो लगा कि मैं श्री रतन टाटा से जब बात करती थी तो वो हमेशा ये बात कहते थे कि मैं तो स्टार्टअप से मिल रहा हूँ लर्न करने, मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ लर्न करने. और वो ह्यूमिलिटी रखना बहुत बड़ी बात है, एंड दैट इज़ व्हाट one is speaking from you, that you are a humble guy and may you continue to be humble. Last, before I let you go, कि आप अपने दिन में AI कहाँ कब और कितनी बार यूज़ करते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि AI should replace me in PW and there should be a AI co-founder to अलग. And अभी मैं नीचे Neo Sapiens करके स्टार्टअप से मिला जिन्होंने एक लॉकेट बनाया है जो दिन भर आपको सुनता रहेगा. और अभी तो बहुत 0 to 1 की स्टेज में है, बट AI will become your best companion. जब हम बच्चों से बात करते हैं कि
लेकिन तुम इतना एआई को क्यों यूज़ कर रहे हो, तो उनका वन सिंगल आंसर होता है, बिकॉज एआई डोंट जज अस। मैं एआई से कुछ भी बात कर सकता हूँ और विदाउट जजिंग वो मुझे गाइडेंस, सपोर्ट, इमोशनल, मेंटल वेलबींग, कंसेप्चुअल, एकेडमिक, हर तरह का सपोर्ट हमको एआई के थ्रू बच्चों को हम दे पा रहे हैं। एआई गुरु, एआई बुक्स के साथ साथ हमने एआई मेंटर लॉन्च किया है अभी बच्चों के लिए। तो दिस इज़ वेयर अ क्लियर ट्रेंड जो कि आ रहा है। और मेरी लाइफ के अंदर तो मुझे ये लगता है कि आई वांट टू बी कम्प्लीटली एआई लेड, कि मैं ऑफिस के अंदर आ रहा हूँ, कोई भी मीटिंग होने वाली है, एआई पहले से क्वेश्चंस तैयार करके रखे कि यार इस सीएक्सओ से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। मीटिंग में मैंने जितनी बात की है वो सब उसको रिकॉर्ड करे और फटाफट टास्क अलोकेट करके टाइमलाइंस डिसाइड कर ले। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। बट अभी तो ऑल ऑफ अस हैव मूव्ड अवे फ्रॉम गूगल सर्च टू एआई सर्च। Yeah. तो वो तो अभी हम सब लोग कर ही रहे हैं। Yeah, so basically you are open to a life full of AI. Right now, how much of it is you are using? So right now, it is 10 times of the Google search which we used to do have moved to all the latest LLMs, as well as task allocation, consulting. अभी तो ऐसा लग रहा है कि यार ह्यूमन से बात करने से पहले एक बार एआई का ओपिनियन ले लिया जाए, एंड देन आई टॉक टू माई CXOs और माई लीडरशिप। इनफैक्ट उनसे बात करने के बाद में भी एक बार एआई का सेकंड ओपिनियन तो ले ही लिया जाए। तो दिस इज तो बिकम अ हैबिट फॉर मी, बिफोर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग, ये तो हो ही गया है। बट अभी ये पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाए एंड देन आई पीसफुली रिटायर फ्रॉम फिजिक्स वाला। Yeah, that we will see. That we will see. What do you think will not change with AI? See, I think few things will change at a little later stage. मुझे लगता है IPL, बॉलीवुड, स्टार लेवल ऑफ टीचिंग विच फिजिक्स वाला डज, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं चेंज होगी। ह्यूमन नीड, पेरेंट्स इन लाइफ, फ्रेंड्स इन लाइफ, ये सब तो फंडामेंटल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग है। हाँ. तो वो तो मेरे ख्याल से नहीं चेंज होगा। रिलेशनशिप थोड़ी सी बदल जाएंगी, बट कंप्लीटली चेंज तो नहीं होगी। Yeah, so those are some of the things. And last, before I let you go, what would you tell to all the entrepreneurs and startups who are building today, who are in 0 to 1 stage? This is the best time to start any idea, any company, not just the startup guys जो कर रहे हैं, जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को भी this is the best time. Indian market is completely ready. स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, वी आर ट्राइंग न्यू थिंग्स, पेमेंट्स बहुत हद तक सॉल्व हो गए हैं। दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज़ द न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस टाइम पे नेटिव एआई आइडियाज़ को आप सोचें, इम्प्लीमेंट करें। स्टार्टअप एक जर्नी है, इट इज़ नॉट अ इवेंट इन योर लाइफ। इस जर्नी को जिएं एंड क्रिएट वैल्यू फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर कस्टमर्स। All the very best. Wow, thank you so much, Prateek. And we remain a big fan, admirer of yours. And to everyone, I'm saying the India story, what I see is a phenomenal success and great humility. मुझे लगता है ये सबसे बड़ा स्किल और कैरेक्टर होता है किसी भी अच्छे एंटरप्रेन्योर में. So thank you. Thanks. Thank you, Shraddha.